Good morning, student. Today I am taking the next topic of first chapter of your economics. That is, what is an economy? When the peoples are earning and they are earning their living or livelihood, उस सिस्टम को कहा जाता है, that system is treated as economy. Like teachers are going to school to earn something, doctors are going to hospital, treating patients, taking fees, farmers go to their field, industrialists go to the industry. The nature and level of economic activity performed by the people of an area would reveal a system. That system is called economy. Now, nature and level of economy. Point 5. The system by which people of an area earn their living includes two basic elements. Nature of economic activity performed by the people and the level of economic activity performed by the people. Nature of economic activity reveals the nature of economy, and the level of economic activity reveals the level or state of economy, whether it is developed or underdeveloped. Let us consider a village. We may find that most people in the village are engaged in agricultural activity to earn their living. Accordingly, we shall conclude that the economy of this village is an agricultural economy. This is about the nature of the economy. अगर हम किसी विलेज की बात करते हैं तो विलेज में क्या होता है, गाँव में क्या होता है, मैक्सिमम जो पीपल्स होते हैं, ह्यूमन बींग होते हैं, दे आर एंगेजिंग इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी एंड दे आर अर्निंग देयर लिविंग. उससे क्या होगा, जब वो कमा रहे हैं किस चीज़ से, फार्मिंग एक्टिविटी से. फार्मिंग एक्टिविटी से कमाने के बाद वो अपना लाइवलीहुड चलाते हैं, तो इस इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी. दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ इकोनॉमी. Further, we may find that the most farmers in the village are rich farmers. They are engaged in high-level production activity. Accordingly, we shall conclude that the economy of this village is rich economy or a developed economy. बहुत सारे किसान क्या बहुत रिच होते हैं, वो हाई लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, तो वो वहाँ की जो इकोनॉमी जहाँ पे वो काउंट होते हैं उस इकोनॉमी को डेवलप्ड और रिच इकोनॉमी कहा जाता है. नाउ पॉइंट नंबर 6, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज. Economic activity of production, consumption, investment and exchange are controlled or regulated by the government of a country, but the degree of control varies across different nations. In China, Russia and North Korea, the degree of control is very high. Such economies where the degree of control is very high are called controlled economy or centrally planned economy. जो भी वहाँ का लेवल होता है, नेचर होता है इकोनॉमी का, उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है. जैसा कि चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ की इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. सेकंड, देयर आर द इकोनॉमीज वेयर द डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ नोशनल, मतलब बहुत कम होता है, वेरी लो होता है. These economies are called free economies or market economies. Economies of USA, UK are the example of this free economy. Third, there are the economies where the degree of control is moderate, neither very high, neither very low. These are called the mixed economy. In our country, this economy is in existence, मीन्स हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में इस तरह की मिक्स्ड इकोनॉमी
पाई जाती है, जहाँ पे ना तो बहुत ज़्यादा हाई कंट्रोल है ना बहुत ज़्यादा लो कंट्रोल है, मिक्स है, दोनों मिला जुला जो एक एवरेज बेस पे जो होता है। नाउ कम टू द centrally planned market economy and mixed economy. Let's take the differentiation between them. First one is the centrally or control economy, second one is the free economy or market economy, third one is the mixed economy. First, these are the economies where the economic activity are firmly controlled by the government or the some centrally authority. इस इकोनॉमी में क्या होता है, ये इस तरह की इकोनॉमी है जहाँ पे जो इकोनॉमी है पूरी तरह से कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, या तो गवर्नमेंट के द्वारा या ऑथराइज पर्सन के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी में क्या है, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग वो जो आपकी इकोनॉमी है वो कंट्रोल होती है, उसे फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। थर्ड वन मिक्स इकोनॉमी, दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाय the free play of market forces but are regulated by the government. ऐसी इकोनॉमी जो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जिसे जहाँ ना तो ज़्यादा फोर्स होता है ना कम फोर्स होता है, तो इस तरह की मिक्सचर टाइप जो रहता है, मिक्स इकोनॉमी हमारे इंडिया में पाई जाती है, उसे मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट, द इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सेंट्रल इकोनॉमी में क्या होता है, जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो किस चीज़ को, सोशल वेलफेयर को देखते हुए लिए जाते हैं। मार्केट इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं। मिक्स इकोनॉमी में इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर। मिक्स में क्या है, दोनों चीज़ आ जाएगी, आपका सोशल वेलफेयर भी आ जाएगा और प्रॉफिट अर्निंग भी आ जाएगी। थर्ड पॉइंट, द कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरेन मतलब द सेंट्रली ऑथोराइज डिसाइडेड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। तो कंज्यूमर इज़ नॉट सॉवरेन, उनके पास पावर नहीं होता है, सेंट्रली ऑथोराइज्ड होती है, तो सेंट्रली अथॉरिटी किसके पास रहेगी, गवर्नमेंट के पास रहेगी। मार्केट में क्या रहेगा, कंज्यूमर इज़ सॉवरेन, कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस के अकॉर्डिंग वो कंज्यूमर जो रहता है, ग्राहक रहता है, वो खरीद सकता है अपने आइटम्स जो भी वो चाहता है। मिक्स में क्या रहता है, कंज्यूमर इज सॉवरेन, हाउएवर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। सॉवरेन भी है और गवर्नमेंट के पास पावर भी है कि जो पीडीएस सिस्टम है वो कितना क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है नहीं करना है पब्लिक को, वो किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में। तो दोनों तरह की चीज़ें यहाँ पे है, दोनों पार्ट यहाँ पे पाए जाते हैं मिक्स इकोनॉमी में। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट डिसाइड एट व्हाट प्राइस द गुड्स आर टू बी सोल्ड इन द मार्केट। देखिए, सेंट्रली प्लान्ड और कंट्रोल इकोनॉमी क्या है, जो टोटली गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, तो सारे डिसीजन कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। कितना बेचना है, कहाँ कब कितना किस प्राइस पे बेचना है, वो सब डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल एंड ऑन बाय द पीपल। द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता है, पब्लिक, पीपल्स जो रहते हैं। क्यों, क्योंकि जो मार्केट रहेगा वो पब्लिक का ही रहता है, पब्लिक उसको ऑपरेट करती है, तो मार्केट फोर्सेस वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या रहेगी, कितनी रखना है, क्या रहेगी, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर। द रिसोर्सेज इन द थर्ड वन, द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल। देखिए, ये मिक्स इकोनॉमी है, तो जो रेगुलेशन और रोटेशन वो मिक्स रहेगा, गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है प्लस पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो दोनों तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, दोनों इसको कंट्रोल करेंगे। लास्ट पॉइंट इन दिस वन, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। पब्लिक सेक्टर क्या है, डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को।
मार्केट में क्या है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, और मिक्स इकोनॉमी में क्या रहेगा, दोनों सेक्टर डोमिनेट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को. ओके, now what you will have to do, you can prepare your notes on the basis of this explanation and the previous explanation and the PDF notes which I have already sent it to you. This first chapter will be asked in your unit test 1, so prepare your notes and be ready for that. Okay, thank you for today.